السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، دوران سفر بظاہر یہ بہت خوبصورت نظر آنے والا چمکدار خوبصورت نظاروں میں جمعۃ المبارک کا خاص دن، جس میں ہر مسلمان جمعہ کے لیے مسجد کا رخ کرنا باعث فخر سمجھتا ہے، مگر ہم میں سے آج دو دوست ایسے بھی ہیں جن کی والدہ کا چند روز قبل پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں یہ دن خوبصورت نہیں لگ رہا۔ پاکستان کے اندر بہت سارے احمدی جو صرف اس لیے ستائے گئے یا ان کے بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے کیونکہ انہوں نے وقت کے امام کو پہچانا اور نیک والدین کے ذریعے یہ سچائی ان تک آگے منتقل ہوئی، مگر پردیس میں بعض کو سب سے زیادہ دکھی لمحہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ پیچھے وطن میں والدین کا تقدیر الہی سے گزر جانے پہ پردیس سے وہاں شامل نہ ہونے پانا ان کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جس پہ یہ وقت آیا ہے اسے یہ ویڈیو دیکھ کر وہ وقت یاد آ جائے گا۔ دو بھائی جو لاہور سے ہیں، ان کے والدین نے ان کی تربیت انہیں نہ صرف خلافت احمدیہ سے جوڑ کر بلکہ دین کی خدمت کو اولین ترجیح کا ذاتی نمونہ دکھا کر جس احسن رنگ میں کی، اس کے متعلق دونوں بھائیوں کے انٹرویوز اور جرمنی میں کیسے مرکز میں نماز جنازہ غائب اور موجودہ حالات کے مطابق دور دور کھڑے ہو کر تعزیت کرنے کے مناظر آپ دیکھیں گے۔ ان کے والد اور والدہ کی چند نصیحت آموز باتوں کی جھلک بھی ہوگی۔ اس وقت آپ ہمارا بیت الصبوح جو مرکز ہے جماعت احمدیہ کا، اس کا بیرونی نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے، اس کا آپ نظارہ بالکل سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے مناظر دیکھیں گے جو مسجد کے اندر سے ہوں گے، نماز جنازہ غائب، اور پھر اس کے بعد دونوں بھائیوں کے چند انٹرویوز ہوں گے، ان کی اچھی باتیں ہوں گی۔ قلیل علالت کے بعد 69 سال کی عمر میں پاکستان روا میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدالسمیع صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ صوم و صلات کی پابند، انتہائی ملنسار اور ساری زندگی چندوں کی ادائیگی باقاعدگی سے کرنے والی تھیں۔ بچوں کو بھی چندوں کی ادائیگی کی تلقین کرتی، بے انتہا مہمان نواز، کبھی کسی مہمان کو گھر سے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتی تھیں، بے شمار خوبیوں کی مالک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت دین کی توفیق بھی دی اور وفات کے وقت وہ نائب صدر لجنہ اور اسی طرح سیکرٹری مال لجنہ کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہی تھیں۔ اس سے پہلے بھی وہ بطور صدر لجنہ، سیکرٹری تحریکات، سیکرٹری ضیافت کے طور پہ کام کرتی رہی ہیں۔ لواحقین میں انہوں نے 7 بچے چھوڑے ہیں، 6 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے واقعی زندگی ہیں، جامعہ احمدیہ ربوہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ عبدالسمیع شاہ صاحب جو ہیں یہ MTA میں خدمت بجا لاتے رہے ہیں اور آپ شعبہ سمیع یونیورسٹی جماعت احمدیہ جرمنی میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ان کے جتنے بھی مرحومہ کے پوتے اور پوتیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف لوگ کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں، روضہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور واحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Nach Juma'gebet werden wir inshallah ta'ala eine Namaz-Janaza bereit verrichten. Und diese Namaz-Janaza ist von der Mutter von Dr. Abdulsamiع Shad Sahib und Abdul Rashid Shad Sahib. Die Verstorbene war Musia und hinterlässt 7 Kinder, wovon
Durch Allahs Gnade sind alle Enkel und Enkelinnen in der Tahrir Orphano. Der älteste Sohn ist für Zindagi und dient in der Jamia Ahmadiyya in Rabwa. Ihr Sohn Dr. Sami Shad diente mehrere Jahre bei MTA Deutschland und zurzeit in der Abteilung Sami Basri, Jamaat Ahmadiyya Deutschland, diente er. Sehr Gott und wies auch ihre Kinder auf diesen Dienst hin. Sie war eine tolle Gastgeberin, niemals ließ sie jemanden von den Essen aus ihrem Haus. Allah hat ihr außerdem die Möglichkeit gegeben, der Jamaat zu dienen. Und sie hat als Sekretärin Tariqat, Sekretärin Zerfurt und auch Sekretärin Mal gedient. Beim Sterben hat sie dann auch Familien gehabt. Möge Allah ihr einen hohen Platz im Paradies gewähren und die Hinterbliebenen Kraft geben, diese traurigen Tod zu ertragen. Wie gesagt, nach dem Gebet und jemand Gebet reden wünsche ich Allah, ihren Azim dabei errichten. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके साथ बात हो रही थी कि हमारे साथ इस वक्त दो दोस्त डॉक्टर साहब हैं और साथ रशीद साहब हैं। इनका लाहौर पाकिस्तान से तल्लुक़ है और जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया जहान में जितने भी अहमदी जहाँ जहाँ जाके बसे उनके ऊपर ये एक वक्त मुश्किल की घड़ी आती है कि माँ बाप में से कोई एक जब यहाँ से रवाना हो जाता है तो परदेश के अंदर इंसान के क्या जज्बात होते हैं, वो जब शामिल नहीं हो पाता आखिरी दीदार के लिए या तदफीन के लिए। तो डॉक्टर अब्दुल शाद साहब जो हैं ये अपनी वालदा मोहतरमा के साथ अपनी अच्छी यादें और जिस तरह उन्होंने इनकी तरबियत की खिलाफत के साथ जोड़ दिया और आज इनको खिदमत दीन की तौफीक मिल रही है, ये और फिर इनके भाई रशीद साहब चंद अच्छी यादों के मुतल्लिक तमाम दोस्तों के फ़ायदा के लिए कुछ बयान करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और मेरी वालदा बड़ा ही प्यार करने वाली, हर दिन हमने उनसे दुआएं ली हैं और हर दिन वो हमारे लिए दुआएं करती थी। हर दिन हमने उनसे टेलीफोन के ऊपर वीडियो के ज़रिए कॉल करनी, दुआएं लेनी और उन्होंने पूछना कि दीन की खिदमत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जमात की खिदमत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमेशा हमें पूछती बताती और दीन सीखने और सिखाने की तरफ आखिर दम तक हमें तो दिलाती रहती। फिर हमारी वालदा का सबसे बड़ा ये है कि हम 7 अलग फजल से बहन भाई हैं और अल्लाह ताला के फजल से हमारे अब्बू जान ने हमारे सब बहन भाइयों की वसीयत के निज़ाम में हमें शामिल करवाया और इसी तरह से अब्बू जान अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे 6 बच्चे 6 बेटे हैं तो मैंने 1/10 की अपनी माली निज़ाम की तो वसीयत की हुई है, लेकिन मैंने अपनी औलाद की भी वसीयत की हुई है। तो चुनाचा हमारे अब्बू जान ने एक जो सबसे हमारे बड़े भाई हैं अब्दुल लतीफ़ शाद साहब, वो वक्फ़े ज़िंदगी हैं। तो इस तरह से अब्बू जान हमारे अक्सर ये कहा करते थे
कि मैंने अपने माल की तो जहाँ पे खुदा की राह में दिया हुआ है, मैंने अपनी औलाद को भी अल्लाह ताला के लिए वक़फ़ किया हुआ है और उसकी भी 1/10 की मैंने वसीयत की है। तो अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद करे और उनको आला मुकाम अता फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम। बहुत शुक्रिया जी। असल में ये जो हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़र जाते हैं उनकी नेकियों को हमेशा अपने ज़हनों में ताज़ा रखें, और जो दोस्त ये चीज़ सुने वो इन बुज़ुर्गों की नेकियों को एक अपने मशअल राह बनाएं और उन पे अमल करने की तौफीक पाएं, और साथ साथ उन बुज़ुर्गों के लिए दुआ भी करें दर्जात की बुलंदी के लिए। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बयान की हैं। मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि माँ की गोद जो होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी तालीम, उससे भी ज़्यादा वो अहमियत रखती है। जो तालीम माँ की गोद में मिलती है वो इंसान की आने वाली ज़िंदगी में उसका ज़रा सा अजहार हो रहा होता है कि आया वो किस साइड पे इंसान जा रहा है। अब साथ हमारे उनके छोटे भाई रशीद साहब, आप भी अपनी कुछ यादें अगर बयान करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रशीद शाद है और शाह साहब का छोटा भाई। मुझे तकरीबन 8 साल का अर्सा हो गया इधर जर्मनी में मुकीम हूँ। और जो वालिदैन की अभी बात हो रही थी, तो वालिदैन की जो तरबियत का सिलसिला है वो हम खुदा ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो इन अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे माँ बाप ने हमें जमात अहमदिया के साथ अटैच रहने के लिए किन किन रंग में हमारी तरबियत की और कौन कौन से फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हमें समझाईं। और आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सारे बहन भाई दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो सारे किसी न किसी रंग में खिदमत दीन बजा ला रहे हैं। बस ये अल्लाह अम्मी ताला जान कुछ दिन पहले हमने इधर यहाँ जर्मनी में स्टूडियो रेडियो बनाने का मौका मिला खाकसार को। माशाल्लाह। तो हम रोज़ाना अम्मी जान से वीडियो कॉल पे बात करनी और अम्मी जान ने दुआ करके तो हमें घर से रवाना करना कि आप मेरे बच्चे खिदमत दीन के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये नहीं कि वहाँ तक, बल्कि कुछ देर बाद फ़ोन करना, पूछना हाँ जी पहुँच गए हैं, फिर पूछना हाँ जी काम शुरू किया है, क्या कर रहे हैं, मुझे दिखाएं। शाम को फिर फ़ोन करना, छुट्टी की काम से, घर गए हैं कि मस्जिद में सो रहे हैं, अच्छा घर चले गए हैं तो क्या काम किया और कितना ख़त्म किया है। और इतनी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने पूछना कि जैसे कि खुदा की जमात का या कोई मस्जिद का काम नहीं, हम किसी प्राइवेट काम कर रहे हैं। और वो हमसे वो इस तरीके से पूछते थे कि हाँ जी कितना काम ख़त्म हुआ। तो ये उनकी एक मोहब्बत का पहलू था। और फिर कभी भी मैंने अम्मी जान से ये नहीं सुना कि हमने अम्मी जान को कभी दुआ का कहा हो तो अम्मी जान ने कहा हो सादा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमेशा अम्मी जान ने कहा कि अल्लाह ताला तनु अरशां दे रंग लावे हैं। और ये आज हम जो जमात के साथ अटैच हैं, ये वही वालिदैन की दुआएं हैं कि खुदा ताला ने इस जमात के साथ अटैच किया है और ये वही अर्श हैं जिनके हमें आज रंग लग रहे हैं माशाल्लाह जी। और जो परदेश के दुख हैं, परदेश में हो यहाँ माँ बाप के आपके पास हैं, उनकी जुदाई का कोई भी उसका मुतबादल नहीं है, ना ही कोई चीज़ उसका मुकाबला कर सकती है। ये माँ बाप एक ऐसी नेमत है। मेरी सब उन सुनने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन जिन के पास जिन जिन के माँ बाप हैं वो उनकी इतनी कदर करें, इतनी कदर करें कि ये एक दफ़ा चले जाएं, ये वापस नहीं आते। बिल्कुल सही बात है आपकी। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम तमाम बहन भाइयों को सब्र दे। इस वक्त हम बेहद शदीद सदमे की हालत में और इधर परदेश में परेशान हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं भी 3 साल पहले मेरे वालिद साहब की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਲਨ ਹਾਂਡੀ ਮੈਂ सब कुछ नहीं खाता, ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। इस वास्ते कि बहाना ना बन जाए, फिर वो गर्मी पड़े तो गाल निकल जाए। ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੇ ਕਬੂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਚੜਾਣਾ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ। ਹੈਲੋ ਦੇ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਕਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਢੀਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਜਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਬੂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਹ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੈਠੇ ਤੇ